Very good morning, students. How are you all? Studying and going through your lessons and also taking care of yourself, taking care of your health during these times. Okay, children. So we have started the first chapter of history, that is where, when, and how. And in this chapter, in yesterday's class, we have learnt that the historians had divided the history into three periods, that is ancient, medieval, and modern period. Then we have studied how important are dates in history. Earlier, only dates were considered as important, but later it was realized that dates are a part of history. It's not necessary to learn and to mug up all the dates. Only important dates are to be remembered, because after all, dates are important. And a birthday date is very important in our life. So some dates are very important in history also. But that doesn't mean that you have to learn all the dates, only need to remember important dates. And now we'll begin our today's chapter, James Mill's periodization of Indian history. Many historians have divided Indian history into various periods. Here we are going to discuss about James Mill. ये एक historian थे जिन्होंने Indian history को अलग अलग periods में बांटा है. There are other historians who had tried to divide Indian history into the Hindu, Muslim and British period. Imagine, कल हमने पढ़ा था पूरी दुनिया की हिस्ट्री किस में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न पीरियड. But there were historians in India who have divided Indian history into the Hindu period, the Muslim period and the British period. And one such historian was James Mill. और ऐसे ही एक historian थे James Mill. He was a Scottish philosopher और उन्होंने एक book लिखी थी A History of British India. Underline करो क्या, what is the name of the book? A History of British India. And in this book, he had divided the Indian history into the Hindu period, the Muslim period and the British period. But most of the Indian historians, they do not agree with this periodization. James Mill was a Scottish person, लेकिन जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस पीरियडाइजेशन को नहीं माना. बोले दिस इज़ रॉन्ग. हाउ कैन यू डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. अकॉर्डिंग टू देम देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग सच अ थ्योरी. हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. कौन सी थ्योरी? गिवन बाय जेम्स मिल, that Indian history need to be divided into Hindu, Muslim and British period. जेम्स मिल ने तो डिवाइड कर दिया, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस डिवीजन को मानने से मना कर दिया. इंडियन हिस्टोरियंस, अब देखो कौन कौन है वो जिन्होंने नहीं माना इसको. H.C. रॉय चौधरी, R.C. मजूमदार, R.G. भंडारकर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्टोरियंस हैं बच्चों. इन्होंने इस थ्योरी को नहीं माना. दे हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन टू द डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड. ये जो तीन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं, H.C. रे चौधरी, R.C. मजूमदार एंड R.G. भंडारकर, इन्होंने इस हिस्ट्री को मानने से या इस डिवीजन को मानने से मना कर दिया और ऑब्जेक्शन किया कि ये सही तरीके का डिवीजन नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट दे से. उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन उठाया? वाई वी शुड जज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम. भाई जो रूलर्स उस समय थे उनके रिलीजन के हिसाब से हम किसी भी पीरियड को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सी व्हेन, जिसे हम मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं, द सल्तनत पीरियड एंड द मुगल पीरियड, उस पीरियड को क्या नाम दिया गया? मुस्लिम पीरियड्स, व्हेन मुगल वर रूलिंग. बट व्हेन मुगल्स वर रूलिंग
at that time there were Rajput kings also and there were Marathas also. सेम टाइम पे इंडिया में जब मुगल्स रूल कर रहे थे, पूरे इंडिया पे मुगल्स का रूल तो नहीं था. देवर राजपूत्स हु वर रूलिंग. पूरा राजस्थान वाला पार्ट कौन रूल कर रहा था? द राजपूत्स वर रूलिंग. देवर मराठा रूलर्स. हाँ, शिवाजी को कौन भूल सकता है, संभाजी को कौन भूल सकता है. सो देवर सो ग्रेट रूलर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन. तो उस पीरियड को हम मुस्लिम पीरियड कैसे कह सकते हैं? ये पहला ऑब्जेक्शन कि किसी रूलर के रिलीजन से उस पीरियड को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय दूसरे रिलीजन के रूलर्स भी थे. देन मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री into Hindu, Muslim and British period only to show that Indian history was of a lower level in the Hindu and Muslim periods. कि जो इंडियन हिस्ट्री, जब हिंदूज और मुस्लिम्स रूल कर रहे थे उस समय लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, है ना. और जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल करने आए उस समय कंडीशन बहुत अच्छी हो गई. ये जानबूझकर किया है जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में, ताकि वो ये बता सके कि व्हेन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर रूलिंग द कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज मच लोअर इन कंपैरिजन व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया. एंड ब्रिटिश पीरियड में इंडिया को, लोगों को सिविलाइज करने का काम शुरू हुआ. He said, in order to civilize the Indians, the British should conquer the whole of India. मिल ने ये जानबूझकर किया ताकि ये दिखा सके कि जब हिंदू और मुस्लिम पीरियड था, इंडियंस का लिविंग स्टैंडर्ड, डेवलपमेंट बहुत कम था. फिर आया ब्रिटिश पीरियड व्हेन कॉलोनियल मास्टर्स केम टू रूल ओवर इंडिया, और उस समय इंडिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. तो उन्होंने इसीलिए ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में बांटा है. बट ये जो दो थ्योरीज हैं विच आर गिवन बाय जेम्स मिल, नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू एग्री टू सच एन आइडिया. क्योंकि व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वो तो बहुत लेट आए थे ना, 1600 के बाद आए थे. इंडिया वॉज मोर सिविलाइज्ड अंडर द मौर्याज, द गुप्ताज एंड इवन अंडर द मुगल्स. हम सब ने आपने जूनियर क्लासेस में ये हिस्ट्री पढ़ी है. अंडर द मौर्याज, गुप्ताज, इंडिया का कितना डेवलपमेंट था. हाँ, वर्ल्ड लीडर कहा जाता था. फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडिया का था. जो सेम टाइम पीरियड था व्हेन मौर्याज वर रूलिंग ओवर इंडिया या गुप्ता एम्पायर रूल कर रही थी, एट द सेम टाइम जो यूरोपियन मोनार्क्स रूल कर रहे थे यूरोप में, वो बहुत बैकवर्ड थे. और इंडिया का सिविलाइजेशन, इंडिया का डेवलपमेंट उनसे ज़्यादा हो चुका था. तो ये जेम्स मिल की थ्योरी रिजेक्ट की जाती है. ना मूविंग अवे फ्रॉम दिस, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जेम्स मिल ने क्यों ये दिया क्लासिफिकेशन, क्यों ऑब्जेक्शन है. पहला ऑब्जेक्शन तो इसलिए है दैट व्हेन मुगल्स वर रूलिंग, व्हेन मुस्लिम्स वर रूलिंग ओवर इंडिया, इन द सेम पीरियड इवन द राजपूत एंड मराठाज वर रूलिंग, तो हम उसे मुस्लिम पीरियड नहीं कह सकते. दूसरी बात, जेम्स मिल ने जानबूझकर ये डिवीज़न दिया ताकि वो बता सके कि ड्यूरिंग हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड इंडिया वॉज नॉट डेवलप्ड, सिविलाइजेशन बहुत लोअर कैटेगरी का था, एंड ओनली आफ्टर कमिंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया डेवलपमेंट हुआ. लेकिन ये दोनों ही थ्योरी या पॉइंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं. नाउ मूविंग अवे फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस अग्री इन डिवाइडिंग द इंडियन हिस्ट्री. तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने जेम्स मिल के क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया. एंड दे हैव अग्रीड टू क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न पीरियड. सेम वही जो पूरा वर्ल्ड की डिवाइडेड है. इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न पीरियड. सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट द ब्रिटिश पीरियड शुड बी कॉल्ड colonial period. ब्रिटिश पीरियड को सब हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया है? colonial period, because under the British rule there was no equality, freedom and liberty. We were like a colony. एक गुलाम देश थे ना हम, इसीलिए ब्रिटिश पीरियड को क्या नेम दिया गया है बच्चों? colonial period. Now an outline of the time frame of these periods. अब हम ये तीन
पीरियड समझेंगे कौन कौन से हैं. एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न पीरियड, ये अब हम समझेंगे इंडियन हिस्ट्री में. द ड्यूरेशन ऑफ दीज पीरियड्स कौन कौन से हैं? एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न इज़ नॉट द सेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये टाइम पीरियड सेम नहीं है बच्चों, कि पूरा एंशियंट एक जैसा है, पूरा मिडीवियल टाइम एक जैसा है, या पूरा मॉडर्न टाइम एक जैसा है. ये कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं. फॉर इंस्टेंस, द मॉडर्न पीरियड इज सेड टू हैव बिगन इन यूरोप इन द 16th सेंचुरी. अंडरलाइन करो, यूरोप में मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ? 16th सेंचुरी में. बट इन इंडिया 16th सेंचुरी कौन से पीरियड में आती है? मिडीवियल. क्योंकि उस समय कौन रूल कर रहा था इंडिया पर? मुगल एम्परर्स लाइक बाबर, हुमायूं एंड अकबर. हमारे लिए तो वो मिडीवियल पीरियड था, जबकि यूरोप में क्या स्टार्ट हो गया था? मॉडर्न पीरियड. All this difference was due to the fact that the speed of progress and civilization was not the same in all parts of the world. एक तरह से काम नहीं हुआ है. कहीं डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हुआ, कहीं डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट हुआ. तो यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ, इसलिए उनका मॉडर्न पीरियड पहले आ गया. हमारे इंडिया में बाद में स्टार्ट हुआ, इसलिए हमारा मॉडर्न पीरियड बाद में आया. Those parts which made progress at a much faster pace. रफ्तार की बात है भाई. जहाँ तेज़ रफ्तार से मॉडर्नाइजेशन हुआ, मॉडर्न पीरियड पहले आ गया. जहाँ लेट हुआ, वहाँ लेट आया. ऑल्सो सो द राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन मच अर्लियर. जहाँ स्पीड तेज़ रही, वहाँ मॉडर्नाइजेशन पहले हुआ. एंड दोज पार्ट्स विच रिमेन बिहाइंड सॉ द डॉन ऑफ मॉडर्नाइजेशन मच लेटर. और जहाँ स्पीड धीरे रही, लाइक इंडिया, हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन लेट हुआ. इन इंडिया, ठीक है, अब हम इंडिया का देखते हैं. इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगैन, अंडरलाइन करो, इन द 18th सेंचुरी. यूरोप में कब स्टार्ट हुआ था बच्चों मॉडर्न पीरियड? 16th सेंचुरी में. और इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? इन 18th सेंचुरी. आफ्टर 1707, when the last great Mughal emperor Aurangzeb breathed his last. With the death of Aurangzeb. कब स्टार्ट हुआ इंडिया में मॉडर्न पीरियड? विथ द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. With the passing of Aurangzeb, the old edifice began to crumble. वो जो पुराना स्ट्रक्चर था मिडीवियल पीरियड का, मुगल एम्परर्स व रूलिंग, और उनका जो रूलिंग स्टाइल था वो अब ख़त्म हुआ, वो टूटने लगा. बिगिन टू क्रम्बल, गिविंग प्लेस टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इंस्टीट्यूशन. तो विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द मिडीवियल पीरियड स्टार्टेड टू एंड एंड द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड टू बिगिन. ओल्ड पार्ट्स बिगिन टू वीकन. वो जो किंग्स थे वो कमज़ोर होते गए, स्पेशली द मुगल पार्ट्स. एंड मैनी न्यू पार्ट्स बिगिन टू इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल होराइजन ऑफ इंडिया. तो वो जो पुराने पार्ट्स थे वो तो ख़त्म हो गए और अब न्यू पार्ट्स सामने आए. द वंस माइटी मुगल्स ग्रेजुअली स्लिप्ड टू द बैकग्राउंड, है ना. विद द औरंगजेब मुगल एम्पायर ख़त्म होने लगी. एंड न्यू पार्ट्स लाइक द मराठाज, द सिख एंड द रोहिलास, द पठान्स, द राजपूत्स, they began to steal the show. They began to rule the country. Their mutual conflicts, अब धीरे धीरे इनमें लड़ाई होने लगी. Rajputs and Marathas and Sikhs and Pathans, they started fighting with each other. Wars होने लगे, which invited various foreign parts. तो अब जब इनमें आपस में लड़ाई हो रही है, मुगल्स का तो डाउनफॉल आ चुका है, मुगल्स तो ख़त्म हो गए हैं. और when they started fighting with each other now, so now अब यूरोपियन पार्ट्स को इंडिया में आने का मौका मिला. और कौन सी हैं बच्चों ये यूरोपियन पार्ट्स? द पोर्चुगीज़, द डच एंड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच. दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर आ कंट्री. तो धीरे धीरे अब वो इंडिया में आकर अपना पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस एवर चेंजिंग पेनोरामा, ये जो सीन चेंज हो रहा है
overshadowed the medieval period. अब when Europeans started coming to India, तो धीरे धीरे medieval period ख़त्म होता है and heralded, brought in the dawn of modern period. So with the downfall of Mughal Empire ended the medieval period, and with the coming of Europeans to India started the modern period, especially with the coming of Europeans to India. Then the country made rapid strides towards the, फिर तो हमारी कंट्री ने मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ. जैसे जैसे यूरोपियंस आते गए, यूरोपियन पार्ट्स कौन कौन सी हैं? पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच. This started modern period in India. Thus, while in Europe the modern period began in the 16th century, in India it began in the 18th, rather in the 19th century. तो देखो दोनों जगह अलग अलग है ना मॉडर्न पीरियड. यूरोप में स्टार्ट हुआ 16th सेंचुरी में, उस समय इंडिया में क्या चल रहा था? मिडीवियल पीरियड. और हमारे यहाँ पर मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ? with the downfall of Mughal Empire and coming of European parts to India in the 18th या 19th century. So this is the starting of modern period in Indian history. आज हम यहीं तक करेंगे. Next topic we'll start tomorrow. Go through the lesson, ध्यान से सुनो इसे वापस, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. Till then keep reading.